Hey everyone, welcome to Taru Tots. मेरा नाम है प्रगति and now we will be doing NCERT worksheet of chapter 7. The name of the poem is Gilli Danda. So let us think. A part is answer the following questions. Question number 1 is which game does the poem mention? What are the things needed to play this game? कविता में किस खेल के बारे में बताया गया है? इस खेल को खेलने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? So children, we can say the poem mentions gilli danda. The things needed are a small gilli, a short stick and a danda, that is a long stick. कविता में गिल्ली डंडा का उल्लेख है. इसे खेलने के लिए एक छोटी गिल्ली और डंडा यानी कि एक लंबी लकड़ी चाहिए. Question number 2 is according to the poem, how do the players feel while playing गिल्ली डंडा? कविता के अनुसार गिल्ली डंडा खेलते समय खिलाड़ी कैसा महसूस करते हैं? The players feel joyful and free while playing गिल्ली डंडा. गिल्ली डंडा खेलते समय खिलाड़ी खुश और स्वतंत्र which means आज़ाद महसूस करते हैं. Question number 3 is what happens to the tiny गिल्ली when the stick strikes it? जब डंडा गिल्ली को मारता है तो क्या होता है? So our answer will be when the stick strikes the गिल्ली, it flies up high into the sky. जब डंडा गिल्ली को मारता है तो वह हवा में ऊंची उड़ती है. Question number 4 is which line tells us that the children are playing the game outside? कविता में कौन सी पंक्ति हमें बताती है कि बच्चे यह खेल बाहर खेल रहे हैं? Our answer will be the lines underneath the bright blue skies and under the golden rays of the sun tell us the children are playing outside. कविता की ये दो लाइनें हमें बताती है कि बच्चे बाहर खेल रहे हैं. Question number 5 is what is the meaning of the line our game is so sound? कविता में यूज हुई इस लाइन का क्या अर्थ है, क्या मतलब है? So children, the line our game is so sound means the game is fun, exciting and enjoyable. कविता की इस पंक्ति का मतलब है कि खेल मजेदार, रोमांचक और आनंदमय है. Question number 6 is which word in the poem shows happiness? कविता में कौन सा शब्द खुशी को दर्शाता है? So children, the word joy shows happiness in the poem. कविता में joy शब्द खुशी दर्शाता है. Let us see the B part. Think and discuss. आपको सोचना है और चर्चा करनी है. Question number 1 is do you enjoy playing outdoors? Why or why not? क्या आपको बाहर खेलना पसंद है? क्यों या क्यों नहीं? Children, the question is for you. आपको खुद से इसके आंसर ऑनेस्टली करने हैं. Let me tell you my answer. Yes, I enjoy playing outdoors because it's fun. I can run freely and it feels refreshing to play with the friends under the open sky. हाँ बच्चों, मुझे बाहर खेलना पसंद है क्योंकि यह मज़ेदार है. मैं स्वतंत्र रूप से दौड़ सकती हूँ और खुले आकाश के नीचे दोस्तों के साथ खेलना ताजगी भरा महसूस कराता है. Question number 2 is Name 5 outdoor games that you enjoy playing with your friends. अपने दोस्तों के साथ खेलने वाले 5 बाहरी खेलों के नाम बताइए. आउटडोर गेम्स वो गेम्स होते हैं जिनको हम घर से बाहर खेलते हैं किसी प्लेग्राउंड में, whereas इंडोर गेम्स होते हैं जिनको हम घर के अंदर भी खेल सकते हैं. तो हमें यहाँ 5 आउटडोर गेम्स बताने हैं. नंबर 1 इज क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी एंड हाइड एंड सीक. Children, have you ever played any of this game? If you have played, so write yes in the comment section. Let us see the third question. Imagine you are the small gilli. What would you see while flying up in the sky? कल्पना कीजिए कि आप छोटी गिल्ली है. हवा में उड़ते समय आप क्या देखोगे? So children, as the gilli, I would see children laughing and cheering. Green fields, bright blue skies, fluffy clouds and the sun shining brightly. अगर मैं गिल्ली होती तो मैं बच्चों को हंसते और खुश होते देखती. हरियाली भरे मैदान, नीला आकाश, सफ़ेद बादल और चमकता हुआ सूरज देखती. मूविंग अहेड, नाउ लेट अस लर्न. समीर वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज अनेबल टू फाइंड हिज ड्राइंग बुक. ही डिसाइडेड टू रीडू हिज वर्क. समीर उदास था. अनहैप्पी का मतलब होता है नाखुश होना, क्योंकि वह अपनी ड्राइंग बुक नहीं ढूंढ पा रहा था. अनेबल विच मीन्स असमर्थ होना. उसने अपना काम फिर से करने का निर्णय लिया. रीडू विच मीन्स दोबारा करना. चिल्ड्रन, बोथ अन एंड री आर प्रीफिक्सेस. बच्चों, हमें ध्यान देना है कि अन और री दोनों प्रीफिक्सेस है. प्रीफिक्सेस बोलते हैं उपसर्ग को.
When we add a prefix at the beginning of a word, it changes the word's meaning. जब हम किसी शब्द की शुरुआत में उपसर्ग जोड़ते हैं या प्रीफिक्सेस लगाते हैं तो उस शब्द का अर्थ बदल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ देखा हैप्पी. हैप्पी का मतलब होता है खुश होना, लेकिन when we add un, unprefix to the word happy, it becomes unhappy, which means not happy. अन जोड़ने से शब्द का अर्थ नकारात्मक बन जाता है, यानी कि नेगेटिव बन जाता है. हैप्पी का मतलब होता है खुश होना और अनहैप्पी का मतलब होता है नाखुश या खुश नहीं होना. लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल. री प्लस ड्रॉ. हमने यहाँ ड्रॉ वर्ड में री प्रीफिक्स को ऐड किया तो नया वर्ड बनता है रीड्रॉ, विच मीन्स ड्रॉ अगेन. री जोड़ने से शब्द का अर्थ दोहराना या फिर से करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, समटाइम योर टीचर सेज रीराइट द वर्क इन योर नोटबुक. अपनी किताब में ये काम दोबारा से लिखिए. सो वी कैन से ईच प्रीफिक्स हैज अ डिफरेंट फंक्शन. हर उपसर्ग का अलग कार्य होता है. अलग अलग उपसर्ग शब्द के अर्थ में अलग तरह का बदलाव करते हैं. लुक एट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस. अब हम इन दोनों प्रीफिक्स की मीनिंग देखते हैं. अन विच मीन्स नॉट यानी कि नहीं. री विच मीन्स अगेन जिसका मतलब होता है दोबारा. नाउ लेट अस डू द वर्कशीट. A part is add correct prefixes to the following words to create new words. Write the new word along with its meaning in the space given below. Children, यहाँ हमें कुछ words दिए हैं जिनमें हमें prefix यानी कि उपसर्ग ऐड करना है. फिर जो नया word form होगा उसको यहाँ लिखना है और लास्ट में उसका meaning बताना है. So let us do this now. For example, we can see the word common. जब हम कॉमन वर्ड में un अनप्रीफिक्स को ऐड करते हैं तो नया वर्ड बनेगा अनकॉमन, विच मीन्स समथिंग दैट इज नॉट इजीली फाउंड, जिसका मतलब होता है जो सामान्य या आम नहीं है, जो बहुत कम देखने को मिलता है, विच इज यूनिक. लेट अस टेक अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. आवर नेक्स्ट वर्ड इज राइट. अगर हम राइट वर्ड में री प्रीफिक्स को ऐड करते हैं तो हमारा न्यू वर्ड बनेगा री राइट, विच मीन्स टू राइट अगेन, फिर से लिखना. नेक्स्ट इज अवेयर. अवेयर का मतलब होता है सावधान. तो अगर हम अवेयर वर्ड में अन प्रीफिक्स को ऐड करेंगे तो हमारा नया वर्ड होगा अनअवेयर. यहाँ अन इसको एक नकारात्मक साउंड दे रहा है, विच मीन्स नॉट नोइंग अबाउट समथिंग, किसी बात से अनजान होना. जब हम कहते हैं कि वी आर अनअवेयर ऑफ द डेंजर, हम खतरे से अनजान थे. नेक्स्ट इज कंफर्टेबल, विच मीन्स रिलैक्स्ड या आरामदायक. अगर हम इसमें अन प्रीफिक्स को ऐड करते हैं तो हमारा न्यू वर्ड होगा अनकंफर्टेबल, विच मीन्स नॉट फीलिंग इजी और रिलैक्स्ड, जिससे आराम ना हो. कभी कभी हम ऐसी जगह पर होते हैं जहां हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, या कुछ ड्रेसेस, कुछ फूड हमें अनकंफर्टेबल फील कराता है. ये कंफर्टेबल का अपोजिट होता है. नेक्स्ट इज अरेंज. अरेंज का मतलब होता है किसी चीज़ को सही तरीके से लगाना. जब हम इसमें डिस प्रीफिक्स को ऐड करते हैं तो ये वर्ड बनेगा डिसअरेंज, विच मीन्स टू पुट इनटू डिसऑर्डर, किसी भी चीज़ को गड़बड़ कर देना या अव्यवस्थित कर देना. किसी भी अरेंज चीज़ को डिसअरेंज कर देना यानी कि उसको उथल पुथल कर देना. एंड द लास्ट वर्ड इज थिंक. जब हम इसमें मिस प्रीफिक्स को ऐड करेंगे तो हमारा वर्ड बनेगा मिस थिंक, विच मीन्स टू थिंक रॉन्गली, गलत तरीके से सोचना या गलत सोचना. हम थिंक वर्ड में री प्रीफिक्स भी ऐड कर सकते हैं, तब हमारा न्यू वर्ड होगा रीथिंक, विच मीन्स फिर से सोचना, दोबारा किसी चीज़ को दोहराना. रीथिंक योर डिसीजन, अपने फैसले पर दोबारा विचार करो. सो चिल्ड्रन, वी हैव सीन द वर्ड्स. जब हम उसमें कोई प्रीफिक्स ऐड करते हैं तो उसका मतलब बदल जाता है. मूविंग अहेड, लेट अस सी द बी पार्ट. इन द फॉलोइंग टेबल encircle the nouns that you can see, taste, टच और स्मेल. इस टेबल में हमें उन वर्ड्स को सर्कल करना है, उन नाउन्स को सर्कल करना है जिनको हम सी यानी कि देख सकते हैं, टेस्ट यानी कि उसको चख सकते हैं, टच मीन्स छू कर देख सकते हैं, और स्मेल यानी कि सूंघ सकते हैं. हमें इन सभी वर्ड्स में से उन नाउन को सर्कल करना है. सो लेट अस डू दिस नाउ. फर्स्ट इज जॉय, विच मीन्स खुशी या आनंद. बच्चों, क्या हम जॉय खुशी को छू सकते हैं? नहीं, इसको हम सिर्फ महसूस करते हैं. नेक्स्ट इज अ लीफ. लीफ बोलते हैं पत्ते को. तो क्या हम किसी लीफ को छू सकते हैं
Yes, we can touch a leaf. So let us circle the leaf. Next is anger. Anger यानी कि गुस्सा. जब हम गुस्सा होते हैं तो हम उसको टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस करते हैं. नेक्स्ट इज अ माउंटेन. माउंटेन बोलते हैं पहाड़ को. चिल्ड्रन, वी कैन सी एंड टच द माउंटेन. सो लेट्स सर्कल दिस. नेक्स्ट इज सन. वी कैन सी द सन. सो लेट अस सर्कल द सन. Shirt. We can see and touch a shirt. So let us circle this. Toffee. So how many of you love eating the toffees? We can see, touch and taste a toffee. Next is a rose. We can see, touch and smell a rose. Ice cube. We can see, touch and taste an ice cube. Sugar. Sugar बोलते हैं चीनी को. We can see, touch and taste. हम इसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और चख भी सकते हैं. HAT हैट. हैट को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं. ट्रुथ. ट्रुथ बोलते हैं सच को, सच्चाई. बच्चों, क्या हम सच को छू सकते हैं? नो. सो दिस इज अ फीलिंग जिसको हम महसूस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज अ चेस बोर्ड. चिल्ड्रन, वी कैन सी एंड टच द चेस बोर्ड. लाई. लाई होता है झूठ बोलना. जैसे हम सच को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिमिलरली हम झूठ को भी टच या टेस्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज फुटबॉल. फुटबॉल इज अ फिजिकल थिंग. वी कैन सी एंड टच अ फुटबॉल. नेक्स्ट इज अ डियर. डियर बोलते हैं हिरन को. वी कैन सी अ डियर एंड ऑल्सो टच इट. ट्री. वी कैन सी, टच एंड स्मेल अ ट्री. हैप्पीनेस, विच मीन्स प्रसन्नता या खुशी. क्या हम खुशी को छू सकते हैं? Until and unless यह किसी का नाम ना हो. अगर किसी का नाम है तो हम उसको ऑब्वियसली छू सकते हैं, लेकिन हैप्पीनेस एक फीलिंग है, एक एहसास है जिसको हम छू नहीं सकते. नेक्स्ट इज अ कैट, जिसको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं. नेक्स्ट इज स्पून. स्पून बोलते हैं चम्मच को. वी कैन सी एंड टच अ स्पून. रिवर. रिवर यानी कि नदी. वी कैन सी एंड टच अ रिवर. फियर. फियर बोलते हैं डर को. जब हमें डर लगता है तो क्या हम उसे छू सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं या हम उस डर को देख सकते हैं? नहीं. वी कैन नॉट सी, टच और टेस्ट द फियर. सो वी विल नॉट सर्कल द वर्ड फियर. नेक्स्ट इज अ कप. वी कैन सी एंड टच अ कप. सिमिलरली फॉर टाइगर, वी कैन सी एंड टच अ टाइगर. द वर्ड्स दैट यू हैव नॉट encircled आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. जिन शब्दों को आपने सर्कल नहीं किया है वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, विच मीन्स अमूर्त संज्ञा है. अमूर्त बोलते हैं जिसकी कोई मूर्त नहीं होती, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता, जिसको हम सिर्फ महसूस करते हैं. द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट refers to something that has no physical shape. एब्स्ट्रैक्ट शब्द किसी ऐसी चीज को दर्शाता है जिसका कोई भौतिक आकार नहीं है, जिसकी कोई शेप नहीं है. अगर उसकी कोई शेप नहीं है तो हम उसे अपनी आंखों से किस प्रकार देखेंगे? तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट चीज को हम नहीं देख सकते. फॉर एग्जाम्पल, सैडनेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं सैडनेस को. सैडनेस मीन्स उदासी, जो कि एक अमूर्त संज्ञा है. हम उदासी को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं. हैप्पीनेस एंड रोज आर बोथ नाउन्स, बट यू कैन टच, सी एंड स्मेल अ रोज. हैप्पीनेस यानी कि खुशी और रोज विच मीन्स गुलाब, दोनों ही नाउन संज्ञाएं हैं, लेकिन आप गुलाब को छू, देख और सूंघ सकते हैं, लेकिन आप हैप्पीनेस को छूना, देखना या उसको सूंघ नहीं सकते. However, you cannot touch happiness, it is a feeling. So we just learned आप खुशी को छू नहीं सकते क्योंकि यह एक भावना है. फीलिंग बोलते हैं भावना को, एहसास को. So feelings, thoughts, ideas, etc. are all abstract nouns as they cannot be touched, smelt or seen. भावनाएं या थॉट्स जिसको बोलते हैं विचार, और हमारे आइडियाज जो हमें सुझाव आते हैं, ये सभी अमूर्त संज्ञा होती है क्योंकि हम इन्हें छू, सूंघ या देख नहीं सकते. कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू मोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स? क्या आप कुछ और ऐसी अमूर्त संज्ञाओं के बारे में सोच सकते हैं? सो यू हैव टू राइट देम इन योर नोटबुक एंड शेयर देम विद द क्लास. तो आपको ऐसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को अपनी नोटबुक में लिखना है और अपनी क्लास के साथ शेयर करना है. फॉर एग्जाम्पल, जॉय विच मीन्स खुशी, लाई, anger, truth,
फियर, ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। एंड नाउ लर्नर्स, लेट अस इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स थ्रू द एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। हमने देखा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम फीलिंग्स, क्वालिटीज, आइडियाज और कंसेप्ट्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वे शब्द हैं जो भावनाओं को, गुणों को, विचारों को या हमारी अवधारणाओं को बताते हैं। दैट वी कैन नॉट सी, टच, स्मेल, हियर और टेस्ट, जिन्हें हम देख, छू, सुन, सूंघ या स्वाद नहीं ले सकते। दे एग्जिस्ट ओनली एज थॉट्स और इमोशंस। ये केवल विचारों या अनुभव के रूप में ही मौजूद होते हैं। तो अगर हम डेली लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो फीलिंग्स विच मीन्स हमारी भावनाएं, हैप्पीनेस खुश, सैडनेस उदासी, फियर डर, एंगर गुस्सा, लव प्यार, एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह, क्वालिटीज जिसको हम गुण बोलते हैं, ऑनेस्टी ईमानदारी, करेज साहस, पेशेंस धैर्य, काइंडनेस दया, ब्रेवरी यानी कि वीरता, आइडिया फॉर एग्जाम्पल एन आइडिया इज ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता का विचार, पीस शांति, ट्रुथ सत्यता को बोलते हैं और नॉलेज यानी कि ज्ञान। फॉर एग्जाम्पल वेन यू फील हैप्पी आफ्टर प्लेइंग विद फ्रेंड्स, जब आप दोस्तों के साथ खेलकर खुश महसूस करते हैं तो उस फीलिंग को बोलते हैं हैप्पीनेस, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम जिसको देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। When someone tells the truth, जब कोई सच बोलता है तो वो अपनी ऑनेस्टी को रिफ्लेक्ट करता है। थिंकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, जब आप शिक्षा के महत्व के बारे में सोचते हैं, यानी कि नॉलेज ज्ञान, तो ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप कैसे इसको समझ सकते हैं? इवन इफ यू कैन फील और एक्सपीरियंस देम, यू कैन नॉट टच, सी, स्मेल और टेस्ट देम फिजिकली। याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है? आप इन्हें महसूस या अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आप इन्हें ना देख सकते हैं, ना टच यानी कि छू सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं और ना इनका स्वाद ले सकते हैं। ऐसी सभी नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होती है। नाउ use examples from L1 to show the correlation of abstract nouns and adjectives to the learners। अब हम L1 की हेल्प लेते हुए, L1 बोलते हैं लैंग्वेज 1 यानी कि हमारी मातृभाषा, मदर टंग, वो भाषा जो हम सबसे पहले सीखते हैं, उसकी हेल्प से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और एडजेक्टिव्स के बीच रिलेशन समझते हैं। चिल्ड्रन, वी कैन सी हियर द हैप्पीनेस यानी कि खुशी, सैडनेस बोलते हैं उदासी को, करेज यानी कि साहस, लव मीन्स प्यार। तो ये सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल थे जो हमें बताते हैं कि ये फीलिंग्स हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एडजेक्टिव होते हैं वो वर्ड्स जो कि नाउन के बारे में बताते हैं, जो नाउन की क्वालिटीज बताते हैं। लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। आइए इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। वी कैन सी अ टेबल हेयर। यहाँ हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया है और यहाँ एडजेक्टिव के बारे में। चिल्ड्रन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है नेम्स ऑफ फीलिंग, क्वालिटी, आइडिया और कंसेप्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भाव, गुण, विचार या अवधारणा का नाम है जो हमने अभी पढ़ा। Whereas adjectives describes a noun और pronoun। Adjectives किसी भी noun यानी कि संज्ञा और pronoun यानी कि सर्वनाम का वर्णन करते हैं। Abstract noun के एग्जाम्पल है happiness, courage, fear। Whereas adjective के एग्जाम्पल है happy, brave और fearful। Abstract noun can be a subject और object in a sentence। Abstract noun किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के तौर पर भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी हो सकता है। वेरेस जो एडजेक्टिव होते हैं ये मॉडिफाई करते हैं एक नाउन या प्रोनाउन को, विच मीन्स नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। एंड नाउ चिल्ड्रन, यू हैव टू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इन द कमेंट सेक्शन। नाउ कम्स द आइडेंटिफिकेशन। हमें कैसे पहचानना है किसी वर्ड को कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या एडजेक्टिव है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछना है खुद से कि क्या आप उसे फील कर पा रहे हैं या उसके बारे में सोच पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल फियर, डर, क्या आप डर के बारे में सोच सकते हैं? यस चिल्ड्रन, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एंड टू आइडेंटिफाई एन एडजेक्टिव हमें पूछना है डज इट डिस्क्राइब समथिंग, क्या ये किसी चीज का वर्णन कर रहा है, किसी चीज के बारे में बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, तो मुझे बताइए कौन खुश है? आई, मैं, जो कि एक प्रोनाउन है। तो ऐसे वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव। लेट अस टेक अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हिज ऑनेस्टी इज एप्रिशिएटेड, उसकी ईमानदारी की सराहना की जाती है।
चिल्ड्रन, यहाँ ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रिप्रेजेंट करता है. अनदर एग्जाम्पल इज ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है. नाउ टेल मी हु इज ऑनेस्ट, कौन ईमानदार है? ही इज ऑनेस्ट. ही जो कि एक प्रोनाउन है. क्योंकि ये वर्ड ऑनेस्ट इस ही के बारे में बताता है तो ये एक एडजेक्टिव है दैट इज डिस्क्राइबिंग अ प्रोनाउन ही. सो हियर इज अ समरी फॉर यू. Abstract noun is the name of things you cannot touch or see, whereas adjectives are the words that describe noun or pronoun. So you have to remember happiness versus happy. खुशी या खुश, इन दोनों वर्ड में क्या डिफरेंस है? Happiness is an abstract noun, whereas happy is an adjective. Similarly, courage versus brave, fear versus fearful. So learners, अगर आपको adjective और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बीच डिफरेंस क्लियर हुआ है, सो राइट यस इन द कमेंट सेक्शन. Dear learners, we will be continuing the rest of the worksheet in the next video. I hope you enjoyed the video and if you did, so do like, share and subscribe Taru Tots. मिलते हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में. Till then, bye bye and take care.